हाय स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर एमसीक्यू मैराथन और आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इजी चैप्टर है। जस्ट सिट विद योर नोट्स ओपन, ठीक है। कीप मार्किंग डाउन एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू कम अक्रॉस। फर्स्ट क्वेश्चन इज electrostatic potential is necessarily zero at a point where electric field strength is also zero. Okay, we'll check it out. Second statement says electric field lines are in decreasing direction of electric potential. Let's understand this. First point was supposedly हमने एक spherical conductor लिया जिसपे हमने चार्ज दिया, तो सारा चार्ज क्या होगा, सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। अब इसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मींस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, बट विल द पोटेंशियल बी जीरो नेसेसरली? दैट इज व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों एक E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड वी कैन सी दैट इफ V इज कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट लेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी। So even though electric potential was some non-zero number, a positive value, still electric field came out to be zero. So the first statement is electrostatic potential is necessarily zero at a point where electric field strength is zero. No, that statement is wrong. Second statement, electric field lines are in decreasing direction of electric potential. So ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. Positive is at higher potential, negative is at lower potential. That means electric field lines do travel from positive to negative. और आपको एक बात बताते हैं इंटरेस्टिंग सी, which is see this formula E is equal to minus dV by dr. इसमें दो टर्म्स हैं, एक नेगेटिव साइन और एक dV by dr. That means electric field is equal to नेगेटिव साइन साइड पे रखता हूं मैं, dV by dr in magnitude. What is this magnitude? Change in potential over in what distance that change occur. So इट इज सिंपली डेल्टा V अपॉन डेल्टा R ऑल्सो, कितना पोटेंशियल चेंज हुआ है कितने डिस्टेंस में, दैट इज वाई इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। दोस्तों ग्रेडियंट इज अ क्वांटिटी विच इज यूज्ड, ग्रेडियंट दैट वर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लेन दोस टर्म्स इन विच वी हैव टू डिफाइन certain change in physical quantity with respect to distance. That's what gradient is. अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आता है, that negative sign itself shows that electric field is in decreasing direction of electric potential. So the options would be, first तो गलत हो गया, that means, but second statement हमारी सही है, तो our option would be 2 is true and 1 is false. Next question, a proton and electron are kept in a region of electric field. Okay, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ड्रॉ करते हैं like this, और हमने इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, this is my electron and this is my proton. अब we know the basic property of electric field lines that they travel from positive to negative. So the positive charge, which is proton, is going to move towards negative, whereas the negative charge is going to move towards positive. अब according to higher and lower potential, positive side this is at higher potential, negative side is at lower potential. तो proton किस side move कर रहा है? Proton is moving from a region of higher to lower, whereas electron is traveling from region of lower potential to higher. Now we can look at options. So the options are, proton will move from higher to lower. नहीं, proton जा रहा है, सही बात है, proton is going from higher to lower. Proton will move from lower to higher, गलत हो गया. Electron will move from higher to lower. No, electron is moving from lower to higher. तो A and D options are correct. So B answer. Next question, a 3 microcoulomb charge is taken from A to B. Then work done will be, दोस्तों वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है ना, वर्क डन इज चार्ज Q नॉट टाइम्स VAB, potential difference between A and B point, and VAB is written as final potential minus initial potential. ये हमेशा ऐसे होता है, इस बात का ध्यान रखना. Anyway, more important point here is Q naught is that charge जिसको मूव करवा रहे हैं. अब अगर आप एक डायग्राम देखो जो दिया हुआ है, इसमें एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज ऑलरेडी ओरिजिन पे पड़ा है, दैट मीन्स दिस 3 माइक्रोकूलम has to move within the potential region of the 2 microcoulomb charge. तो इसका potential region supposedly ये है, तो इस region के अंदर move करना है, right? Now, according to our formula, work done is Q naught, which is 3 microcoulomb charge times potential at B minus potential at A. But potential at B किसके वजह से है?
जो चार्ज मूव कर रहा है यानी कि 3 माइक्रोकूलम इसके वजह से है, या जो ओरिजिन पे पड़ा है इसके वजह से है? ऑब्वियसली जो ओरिजिन पे पड़ा है। तो जिस डिस्टेंस पे बी पॉइंट है उसी डिस्टेंस पे ए पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स देखो 0,3 एंड 3,0। सो 3 यूनिट्स एक्स डिस्टेंस भी है, 3 यूनिट्स वाई डिस्टेंस भी है। दैट मींस पोटेंशियल एट बी पॉइंट, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। चार्ज कौन सा है यहाँ पे? 2 माइक्रोकूलम का। सो के क्यू बाय आर फॉर ए इज ऑल्सो इक्वल टू के क्यू बाय आर फॉर बी। दैट मीन्स वीबी माइनस वी ए की वैल्यू सेम हो गई। आई मीन वीबी और वी ए की वैल्यू सेम हो गई, तो वीबी माइनस वी ए बिकम्स 0। सो वर्क डन आएगा हमारा 0। Easy question. So next question is, there can be a positive potential difference between two neighboring conductors carrying equal positive charge. क्या ये बात सच है? अगर हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसको आई हैव टू ट्रांसफर टू फर्स्ट, एक कंडक्टर छोटा सा, दूसरा कंडक्टर बड़ा सा, राइट? स्टेटमेंट देखो, there can be positive potential difference between two neighboring conductors carrying equal positive charge. तो दो कंडक्टर्स है जिसपे तुमने इक्वल पॉजिटिव चार्ज दिया, क्या उनका पोटेंशियल सेम होगा? नो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द चार्ज बट ऑल्सो ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। इसी वजह से देयर कैन बी अ पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग कंडक्टर्स। यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Also, work done to carry charge q once around the circumstance. This is circumference. Work done to carry charge q once around the circumference of radius r with 2q at center is okay. तो work done का फॉर्मूला आपको पता है, एक हमारे पास चार्ज 2q है, सर्कमफ्रेंस पे हमें दूसरा पार्टिकल q मूव कराना है, तो विल देयर बी एनी वर्क डन? दैट वाज द क्वेश्चन. वर्क डन विल बी इक्वल टू 0 क्यों? नाउ दैट यू नो कि q नॉट है हमारा, q जो मूव कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस VAB, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट भी ये है, तो VAB पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया एंड हेंस वर्क डन विल आल्सो बी 0. सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड हेंस आवर आंसर टू दिस वुड बी डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, a proton and a neutron are kept in a region of electric field. Choose the correct option. न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो न्यूट्रॉन को कोई फर्क पड़ेगा? इट्स अ न्यूट्रल चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी. सो न्यूट्रॉन डज नॉट मूव. और किसी में ऑप्शन है ये? न्यूट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल. गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. तो ऑब्वियस आंसर है, बट लेट्स रीड इट कंप्लीट. न्यूट्रॉन डज नॉट मूव and proton moves from higher to lower potential. This we have already discussed, so A is the right answer. Next, a nucleus has a circular orbit for electrons and another nucleus has elliptical orbit for electrons. So we have two nucleus, एक के पास circular orbit है और एक दूसरे nucleus के पास elliptical orbit है. क्वेश्चन में पूछा वर्क डन इन मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन सर्कुलर ऑर्बिट इज 0. सेकंड, यस 0. अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगी. और सेकंड केस में वर्क डन इन मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेप्टिकल ऑर्बिट इज 0. दैट इज आल्सो ट्रू बिकॉज इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही हो जाएगा 0. सो बोथ आर ट्रू. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द गिवन ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, इट्स वर्सेस इट्स पोटेंशियल. तो चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ऑप्शन देखने से पहले आप फॉर्मूला याद करो, Q इज इक्वल टू C टाइम्स V होता है. यहाँ पे C क्या है? C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. Q is directly proportional to V and the graph would be a straight line. So this straight line gives constant thing, and this straight line, since it's a constant, we already know. So which quantity is this? This quantity is known as capacitance, है ना? Next question. Three charges Q1 2 microcoulomb. Let us write it down along. Q1 is 2 microcoulomb. Q2 is 3 microcoulombs. Q3 is minus 6 microcoulombs. Are placed on the circumference of a circle of radius 2 meter. Okay, radius दिया हुआ है 2 meters. The value of Q4 for electric potential at center to be 0. Nice. So electric potential 0 कब हो सकता है? When sum of all potentials due to individual charges is equal to 0. अब since all the charges are placed at same distance, तो KQ by R वाले टर्म में K और R constant निकाल सकते हो. बचेगा क्या? Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. So sum of these four charges has to be 0. तो 2 plus 3 5 minus 6 minus 1, तो Q4 has to be plus 1 ताकि overall value 0 हो जाए. Next question. Choose the incorrect option.
इनकरेक्ट वर्ड आ गया, ध्यान से पढ़ो। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, पता है हमें, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज 1 न्यूटन मीटर ओवर कूलम। क्या 1 वोल्ट इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर कूलम होता है? चेक कर लेते हैं। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? वी इज डिफाइंड एज, बेसिक डेफिनेशन याद करो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एंड व्हाट वाज वर्क डन? वर्क का बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट चार्ज। सो फोर्स इज न्यूटन, डिस्टेंस मीटर एंड चार्ज कूलम। सो एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर ओवर कूलम। सो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। 1 volt is equivalent to 1 joule of work to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to another against the electrostatic forces. Against होता है या along होता है? Okay, I'll explain this. अगर electric potential due to this positive charge at distance r निकालना है तो हम क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे बेसिक कंसेप्ट था जब आपने सबसे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन की थी, कि जिसमें फॉर्मूला आया था V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। उस डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज से आता था। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, इन्फानाइट पे क्यू नॉट पड़ा है, छोटा सा चार्ज, इसको हम इन्फानाइट से इस आर डिस्टेंस तक लेके आएंगे और जितना वर्क डन होगा अपॉन यूनिट चार्ज दैट वाज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन्फानाइट से जब हम इस पॉइंट आर तक लेके आ रहे हैं तो इस are we moving this charge opposite to electric field or along the electric field? अब इस positive charge की वजह से electric field lines outwards, so we are definitely moving this q naught against the electric field and that means to another against the electrostatic forces. क्या ये statement सही हो गया? बिल्कुल सही। अब फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, यहां पे along the electrostatic, अब फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है बट यहां पे along the electrostatic forces दिया हुआ है, जबकि हमें पता है कि हम along नहीं मूव करते, हम against the electrostatic force मूव करते हैं। दैट मीन्स कि हमारी गलत ऑप्शन कौन सी हुई? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अगेन इनकरेक्ट। नो वर्क इज डन इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड चार्ज मेटालिक स्फीयर। चार्ज मेटालिक स्फीयर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में नो वर्क डन, बिकॉज हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, सो वीवी माइनस वी जीरो हो जाएगा। दिस इज करेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस देयर आर टू, दिस शुड बी आर, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नो, electrostatic potentials do not intersect. The way electric field lines do not intersect, similarly electrostatic potential also do not, like equipotential surfaces do not intersect. Okay, so that's a wrong statement, so we don't have to look any far, our answer would be B. Anyway, let us check third and fourth statement. Electric field lines are always normal to the surface of conductor. Yes, electric field lines हमेशा perpendicular होते हैं किसी भी charge conductor से, तो ये point याद कर लो आप। And the last point, electric potential decreases along the electric field lines. Yes, we have done this property. So moving on to next question. Electric potential V at any point x, y, z in space is given by V is equal to 4x square plus 2y square. Okay, V is equal to 4x square plus 2y square. The electric field at point 1, 0, 2. Electric field का फॉर्मूला क्या था? माइनस dV over dr. अब यहाँ पे dr तो समझ में आता है, ये x और y का क्या करें? यहां पे यू विल डिफरेंशिएट इट पार्शियली, एक बार x के अलॉन्ग एक बार y के अलॉन्ग। क्यों कर रहे हैं ऐसा? जब आप x के अलॉन्ग डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट ex, और जब y के अलॉन्ग डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट ey। यहां पे आपको मैग्नीट्यूड मिलेगी और उसके बाद डायरेक्शन आप i कैप और j कैप लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी वैल्यू बता सकते हो। दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अगर k होता तो k के अलॉन्ग भी करते हैं, यानी कि z डायरेक्शन के अलॉन्ग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। So let's do it. We are doing minus d over dx किसका? 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का। क्या बचेगा? 2y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो जाएगा। 4x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 4 2 टाइम्स 8x, सो माइनस 8x आएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा? जब आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 4y है ना। ये तो हमारे e की वैल्यू आ गई। दिस इज माई ex एंड दिस इज माई ey। अब मैग्नीट्यूड कितना है? कोऑर्डिनेट्स वैल्यू पुट करके देखो,
x की जगह 1 डाला तो आ जाएगा -8 और डायरेक्शन के साथ i कैप। y की जगह 0 डाला तो ey की वैल्यू 0 हो गई, तो नेट आंसर क्या बचा हमारा, -8i। अब यहाँ पे इस 2 का क्या करें, जो z कोऑर्डिनेट दिया था ये यूज नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो टर्म है 4x² + 2y² + 3z², अगर कोई ऐसा टर्म होता तो हम यहाँ पे z के अलॉन्ग भी डिफरेंशिएट करते और फिर z की कोऑर्डिनेट डालते हैं, बट है ही नहीं तो हम z को यूज ही नहीं करेंगे। तो ओवरऑल आंसर हमारा -8i कैप एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin metal sheet is placed in the middle of a parallel plate capacitor. New capacitance C dash and old capacitance C are related as. ओके फाइन, हमारे पास एक कैपेसिटर था, इसकी कैपेसिटेंस C है। अब क्या किया, इस कैपेसिटर के बीच में एक थिन मेटल शीट डाल दी, पतली सी शीट। दिस इज नथिंग बट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स ईच हैविंग डिस्टेंस d/2 बिटवीन इट्स प्लेट्स, है ना, क्योंकि मिडिल में रखा था, टोटल डिस्टेंस अगर d थी बिटवीन प्लेट्स, तो अब d/2 और d/2 हो गया। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीरीज का फॉर्मूला इज ट्वाइस ऑफ, दो कैपेसिटर हैं तो ट्वाइस ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू, अगर 3 सीरीज में होते तो थ्राइस ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। सही कह रहा हूं मैं? देखो सीरीज में क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं उतने से आप डिवाइड कर दो, दैट इज द आंसर। पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाते हैं, रेजिस्टर्स के केस में उल्टा, ठीक है। पैरेलल में अगर 4 रेजिस्टर्स हैं 3 ओम्स के तो आंसर आ जाएगा 3/4। नाउ यहां पे d/2 और d/2 के हिसाब से ये 2 आपको भरमारा था, इट वाज लाइक 1/2 टाइम्स ε0 a/d/2। सो d/2 2 ऊपर चला गया जो कैंसल आउट हो गया, दैट इज ε0 a/d ओनली। सो इनिशियल कैपेसिटेंस भी ε0 a/d थी, फाइनल भी ε0 a/d है, दैट मींस कि इनिशियल एंड फाइनल कैपेसिटेंस आर सेम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ चार्ज ऑफ +q1 इज गिवन टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, हमारे कैपेसिटर के पास एक पॉजिटिव प्लेट पे +q1 दे दिया गया एंड चार्ज ऑफ -q2 टू द नेगेटिव प्लेट, -q2 दे दिया दूसरे प्लेट पे। देन चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, सो चार्ज कितना होता है इफेक्टिव कैपेसिटर पे, जो उसके पॉजिटिव प्लेट पे होता है वही चार्ज होता है ओवरऑल कैपेसिटर पे, बिकॉज द सेम चार्ज गेट्स इंड्यूस्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्लेट, एंड अगर सीरीज में एक और एक कैपेसिटर है तो उसके पास भी सेम इंड्यूस होगा, ठीक है। सो द आंसर वुड बी +q1। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a spherical shell with radius a and charge q is expanded to radius b. Work done by the electrostatic force in this process. अब work done का फॉर्मूला क्या होता है, work done is initial energy stored minus final energy stored, because we are doing work done against electrostatic forces. What is initial energy? q² over 2 c initial जो था minus q² upon 2 capacitance final जो है। so q² कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में, एक्चुअली q² over 2 बाहर निकाल लो आप, you will be left with 1 upon, what is the capacitance of a spherical capacitor, 4πε0 r। सो स्टार्टिंग में जब रेडियस a था तो वैल्यू थी हमारे पास 4πε0 a माइनस 1/4πε0 b। अब 4πε0 नीचे से बाहर आएगा तो q² upon 8πε0, दैट इज द आंसर, q² over 8πε0। ब्रैकेट में क्या बचा, डिनोमिनेटर में बचा कॉमन निकाल के नीचे a माइनस b, तो यहां से आप कॉमन निकालो, क्या क्या कॉमन आएगा, q² अपॉन नीचे से 4πε0 बाहर आ गया तो बचा 8πε0, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1/a माइनस 1/b। सो b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, इफ वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर इज इंक्रीज 8 टाइम्स, ओके, v dash is 8 times v, the capacitance is then increased by a factor of। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटल स्फीयर की बात कर रहे हैं, स्फीयर का फॉर्मूला आपने अभी अभी देखा कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 r, ठीक है। तो रेडियस कितना चेंज हुआ है इससे पता चल जाएगा, और रेडियस हम वॉल्यूम से निकाल लेंगे। सो न्यू वॉल्यूम विच इज 4/3 πr³, कैपिटल आर लिख रहे हैं क्योंकि बड़ा हुआ है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स 4/3 πr³। अब यहां से हमें क्या पता चला, अगर आप 4/3 π काट दो तो क्या बचा आपके पास, r³ इज इक्वल टू 8 टाइम्स r, और कैपिटल R इज 2r, क्यूब रूट ले लिया। सो यहां पे c इज
4 pi epsilon naught r and c dash is 4 pi epsilon naught capital R which is 2r. अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लो तो c upon c dash is what? 1/2. That means c dash is twice of c. So the answer is 2 times. Next question. A metal sphere of radius 1 centimeter can hold a charge of 1 coulomb in any medium. ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता समझो. एक 1 सेंटीमीटर के रेडियस को पे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर रेडियस पे हमने 1 कूलम का चार्ज देना है. एक 1 सेंटीमीटर के रेडियस स्फीयर पे हमें 1 कूलम का चार्ज देना है. पोटेंशियल क्या हो जाएगा पता है? स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर. के 9 इंटू 10⁻⁹. चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, रेडियस 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻². सो 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट्स. क्या ये वोल्टेज एयर की डाइलेक्ट्रिक वैल्यू से ज्यादा है कम है? डेफिनेटली ज्यादा है. एयर का आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है? इफ दिस स्फीयर इज प्लेस्ड इन एयर तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 10⁻6 वोल्ट्स. अब दिस वोल्टेज इज वे ग्रेटर देन 10⁻6 वोल्ट. तो क्या होगा कि सारा का सारा चार्ज हवा में लिबरेट हो जाएगा. सो कैन वी प्लेस, फर्स्ट स्टेटमेंट, कैन वी प्लेस अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड गिव इट अ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन एनी मीडियम? हवा में तो नहीं कर सकते, तो एनी मीडियम का कंसेप्ट ही गलत हो गया. पानी में शायद कर ले, पानी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होती है. नहीं. Now, metal sphere of radius 1 centimeter can hold a charge of 1 coulomb only if ionization potential of medium is greater than 10⁻13 volt. हमारे पास इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई है? इस पर्टिकुलर स्फीयर का जो पोटेंशियल है 10⁻11 वोल्ट्स पे है और आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी मीडियम का कह रहे हैं हम 10⁻13 वोल्ट. सो इफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस देन, I'm talking about ionization potential of the medium is less than that of the potential of the sphere. क्या होगा? चार्ज लीक नहीं करेगा, चार्ज will remain on the sphere. So पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग, दूसरा स्टेटमेंट सही है. तो A is false, B is correct. So the right answer would be B. Next question. If a plates of charged capacitor are suddenly connected by conducting wire, it gets discharged and energy stored in the capacitor gets converted into heat energy. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. दो प्लेट्स हैं आपके पास, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज, और क्या होता है अगर हम उनको कनेक्ट कर दें? सो द इंटायर चार्ज डिसोसिएट्स इनटू व्हाट? इंटायर चार्ज गेट्स न्यूट्रलाइज्ड. सो द चार्ज फ्लो, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टार्ट्स अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इन द कैपेसिटर. राइट. सेकंड स्टेटमेंट. Some materials which when placed between plates of a parallel plate capacitor reduces the capacitance of the capacitor. अगर हम कैपेसिटर के बीच में कुछ डालते हैं, अभी तक आपने दो चीजें डाली, एक बार कंडक्टिंग स्लैब जिससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ था, एक बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब उससे भी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ था. तो सम मटेरियल which when placed between plates of a parallel plate capacitor reduces, कैपेसिटेंस रिड्यूस नहीं होती, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकती है if you are messing up with the distance in between, because you are also providing a conducting or non-conducting medium. So overall distance gets decreased, capacitance gets increased, है ना. So reduces तो नहीं हो सकता, तो second statement गलत हो गया. First is correct, second is false. Answer A. If QCV represents charge, capacitance and potential of a parallel plate capacitor, then पहला ग्राफ between Q and V, ये C दिखाएगा. ये हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं. और C versus Q ग्राफ, charge is constant with respect to, sorry, capacitance is constant with respect to charge. capacitance की वैल्यू constant है ना. अब is this a correct graph? yes, constant होता है. Q is equal to CV, जिसमें C constant होता है, तो constant का graph would always be a straight line. So A भी सही है, B भी सही है, तो answer would be both A and B are correct. Next question. An uncharged capacitor is connected to a battery if Q is the energy supplied by the battery during charging of capacitor. तो हमारे पास एक कैपेसिटर था जो अनचार्ज था, उसके बाद उसको पोटेंशियल दिया गया, चार्ज किया गया और उसको टोटल एनर्जी मिली Q. So then amount of energy lost as heat during charging, तो amount of energy lost as heat during charging is always half of what is supplied, Q by 2.
ये इस पॉइंट का प्रूफ भी है, हमारे सिलेबस में आपने डेरिवेशन या किसी न्यूमेरिकल में किया होगा, इस पॉइंट को याद रख लो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन इज द वेरिएशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V विद डिस्टेंस x, तो सी हाउ द ग्राफ इज, पहले स्ट्रेट लाइन फिर एसएसआई कर्व, y एक्सिस पे आपके पास पोटेंशियल है और x एक्सिस पे आपके पास डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट, पहला पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B, थर्ड पॉइंट इज C, फोर्थ पॉइंट इज D। अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पता चलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले ग्राफ से इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कैसे चलेगा? यू विल यूज द सेम फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, dv अपॉन dr, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अगर तो, और साइन की बात करेंगे तो माइनस dv बाई dr। एनीवे dv अपॉन dr क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप। चलो अब ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन भी आती है, तो पूरा फॉर्मूला माइनस dv अपॉन dr, दैट मीन्स जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा होगी नेगेटिव साइड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्सिमम होगा। इस बात को फिर से समझो, अदर वे राउंड, जहां पे स्लोप सबसे कम होगा पॉजिटिव साइड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मिनिमम होगी। तो हमारी मैं दोनों स्टेटमेंट्स बता दी आपको अप एंड डाउन वाली। सो इस केस में नाउ यूल गेट द आंसर, बी पॉइंट पे स्लोप नीचे की साइड है, सडन स्लोप है क्योंकि बी पे ग्राफ चेंज हुआ है नीचे की साइड, सो बी पे नेगेटिव साइड स्लोप है सबसे ज्यादा, इसीलिए बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। फिर से स्टेट कर रहे हैं कि पोटेंशियल वर्सेस कौन सा ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ से अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड। स्लोप जहां पे नेगेटिव साइड होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, जहां पे स्लोप पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव स्लोप कैसे होती है? पॉजिटिव स्लोप मींस ऊपर की तरफ लाइन और नेगेटिव स्लोप मींस नीचे की तरफ लाइन। जहां पॉजिटिव स्लोप है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी बिकॉज फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है, और जहां पे नेगेटिव स्लोप होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी। जहां सबसे ज्यादा स्लोप नीचे की तरफ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। अब की बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ पता करना है फॉर द गिवन पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। अब ये पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है कैसा? एक रोम्बस जैसा, पहले इंक्रीज फिर कांस्टेंट फिर डिक्रीज। अब देखो अभी अभी जो हमने डिस्कस किया E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr से, सबसे पहला स्लोप पॉजिटिव है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? पहला स्लोप कौन से रीजन की बात कर रहा हूं मैं? इस रीजन की। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली नेगेटिव साइड होगी। ऑल्सो स्लोप कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी नीचे की तरफ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पोर्शन में यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां से यहां तक जीरो है। एंड फिर थर्ड पॉइंट जहां पे स्लोप नेगेटिव है, जहां स्लोप नेगेटिव है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगी विद अ कांस्टेंट वैल्यू। सो दिस इज हाउ योर ग्राफ शुड लुक लाइक एंड द करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन। तो हम इनको रीनेम भी कर सकते हैं A, B, C से, and the right answer would be B in this case. Next one, a dielectric material of dielectric constant K is inserted in half portion. तो हमारे पास dielectric constant K वाला आधे पोर्शन में भर दिया गया है, तो टोटल प्लेट डिस्टेंस अगर D थी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जो एरिया ऑफ प्लेट A है दैट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, A/2 एंड A/2। न्यू कैपेसिटेंस पूछा है। नाउ दिस कैपेसिटर जिसमें आधा पोर्शन भरा हुआ है किसी और मीडियम से, दिस इज सिंपली टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 joined in parallel like this, right? दो कैपेसिटर पैरेलल में ज्वाइन हो गए। सो C1 और C2 इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसकी क्या हो जाएगी? नेट कैपेसिटेंस C डैश विल बी C1 प्लस C2। क्वेश्चन में देखते हैं, स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस C थी, इनिशियल कैपेसिटेंस जो C है हमारे पास, C का फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको यहीं छोड़ते हैं, C1 C2 पे आते हैं। C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D बाई 2 पर चला जाएगा, प्लस C2 की वैल्यू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2। तो बचा क्या हमारे पास? 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहां से अगर आप एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन निकालोगे तो आपके पास
2 प्लस 2 के ब्रैकेट में बचेगा तो 2 भी बाहर निकाल लो, 2 एप्सिलॉन a by d बाहर निकाल के बचा क्या 1 प्लस k, तो 2c 1 प्लस k should be the right answer. So 2c 1 plus k is option A. Next question. A parallel plate capacitor having plate area A, distance of separation D has capacitance C. सब कुछ दे दिया. Metal sheet of thickness D by 2 introduced in between. इजी क्वेश्चन है. मेटल शीट जब डालते हैं, मेटल स्लैब जब डालते हैं, इसकी थिकनेस भी दी हुई है D by 2. फॉर्मूला क्या हो जाता है? C dash becomes epsilon naught A upon D minus T. D is the thickness of slab. तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी हमारी? एप्सिलॉन नॉट A upon D minus D by 2 is D by 2. 2 ऊपर चला गया. 2 times epsilon naught A by D, that means 2C. Minimum number of capacitors of 2 microcoulomb each required to obtain a capacitance of 5 microfarad will be. Okay. हमें पता है कैपेसिटर सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कब ऐड होता है? जब हम उसको पैरेलल में लगाते हैं. तो सबसे पहले तो हम 2 कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देते हैं. अब हमारा रिजल्टेंट यहां तक हो गया कितना? अभी तक रिजल्टेंट हो चुका है 2 और 2 का 4 माइक्रोफैरेड्स हो चुके हैं. हमें चाहिए 5. हमें एक और लगाना है 1 माइक्रोफैरेड का, लेकिन 1 है नहीं, 2 है. तो 2 को सीरीज में लगा दो. सो 2 and 2. सो टोटल 4 कैपेसिटर्स वी नीड टू मेक इट अ 5 microfarad capacitors. This is the minimum. Next question. If plates of a charged capacitor are drawn apart after disconnecting the battery, the energy stored in it increases. सबसे पहले तो एनर्जी का रिलेशन बताओ. एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है? हाफ CV square, right? No, this was not the important formula. The main formula for energy is Q square upon 2C. यहां पे आप Q is equal to CV पुट करोगे तो यहाँ पे आप Q is equal to CV पुट करोगे तो Q स्क्वायर बाई 2C आएगा फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले में C is equal to Q by V पुट करते हो तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा V अपॉन 2Q. C की जगह आपने क्या पुट किया? Q is equal to CV होता है, C की जगह आपने पुट किया Q अपॉन V, तो एक Q कट गया, V ऊपर चला गया, V by हाफ V by Q. नाउ ड्यूरिंग चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग कौन कौन सी टर्म्स कांस्टेंट रहती है, ये आप अभी याद कर लो. ड्यूरिंग चार्जिंग सिर्फ पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है बिकॉज पोटेंशियल सप्लाइड है बाहर से. आफ्टर चार्जिंग चार्ज कांस्टेंट रहता है. तो जब भी आपको डील करना हो ड्यूरिंग चार्जिंग, आफ्टर डिस्चार्जिंग और आफ्टर डिस्कनेक्टिंग वाले क्वेश्चन से, यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर यूजिंग द फॉर्मूला विच इज एप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें बोला था कि आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो आई गो फॉर सच ए फॉर्मूला जिसमें पोटेंशियल वाला यूज हो जाए. तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला इज हाफ CV स्क्वायर, है ना. आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया यानी कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहने वाली है? आफ्टर डिस्कनेक्टिंग चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे चार्ज वाला विच इज Q स्क्वायर बाय 2C. अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा? सबसे पहले जब आप उसमें क्या किया गया, आर ड्रॉन अपार्ट. किसको? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर ड्रॉन अपार्ट, उनको दूर कर दिया. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A by D, और D इंक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई. डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो एनर्जी इंक्रीज हुई है. सो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहली वाली सही हो गई कि एनर्जी इंक्रीज होता है. सेकेंड, if plates of a charged capacitor are drawn apart with battery still connected, अभी बैटरी कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? यहां पे यूज होगा हाफ CV स्क्वायर. अब हाफ CV स्क्वायर के हिसाब से पूछा क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस. देखो हाफ CV स्क्वायर, V कांस्टेंट है, C की वैल्यू पूछ रहे हैं और C इज गोइंग टू डिक्रीज. अगर हम प्लेट्स को अपार्ट कर दें, C डिक्रीज होगा तो एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी. सो एनर्जी कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस बिकॉज C इज डिक्रीजिंग. आपकी बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो दोनों ऑप्शन सही हो गए, बोथ A एंड B आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन सीरीज. अच्छा, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, इनको ज्वाइन कर दिया सीरीज में, एंड कॉम्बिनेशन इज गिवन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट. अब पूरे को V वोल्ट दे दिया गया.
तो हर एक के पास वोल्टेज कितनी हो गई, V बाई एन, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल्स इक्वली डिवाइड हो जाएगा सिमिलर कैपेसिटर से। एंड नाउ जॉइंट अगेन इन पैरेलल, अब हर एक पे जो वोल्टेज V बाई एन था इन सभी को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को, दे हैव n इन नंबर, ठीक है। नाउ देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन इज, पैरेलल में V बाई एन सभी के पास है, तो टोटल पोटेंशियल भी V अपॉन एन ही होगा, सो आंसर इज V बाई एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the given equipotential surfaces strength of electric field is maximum for point A, B, C and D। हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डायरेक्शन छोड़ दो अभी, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस dV बाई dr, हमें चेंज इन पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब देखो पहली लाइन से दूसरी लाइन के बीच में यहाँ पे 50 वोल्ट है या 40 वोल्ट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 10 वोल्ट का। 40 से 30 के बीच में डिफरेंस है 10 वोल्ट का, 30 से 20 के बीच में भी डिफरेंस है 10 वोल्ट का, तो न्यूमरेटर वैल्यू कांस्टेंट है। अब आप डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस जहां सबसे कम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल डिस्टेंस सबसे कम कहां पे है, डी पॉइंट पे, सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी। इजी, सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, 10, 20, 40, 60 वो सारी वैल्यूज आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी मिनिमम if area of the plates and separation between the plates in is same in each case। हर एक में सेम है क्या क्या, एरिया और सेपरेशन। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, ये हमें पता है। ओके, इसमें अगर हम पहले वाले कैपेसिटर को देखें A ऑप्शन को, तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, लेकिन सेकंड वाले केस में आ जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। थर्ड केस K1 और K2 से सेपरेटली फिल्ड है, लेकिन K1 और K2 इक्वल टू K है, तो इस केस में भी आंसर यही हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और C केस, इसमें भी सेम आंसर आ जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो B, D और C तीनों का ऑप्शन सेम है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, लेकिन A ऑप्शन में क्या है और कुछ भी नहीं डाला, तो इसमें C में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो करेक्ट आंसर क्या है, मिनिमम किस में हुआ, A में। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, in fact next two questions, I'll explain you two basic concepts. Choose the non-polar dielectric, that's the question. Question is not about this. Let me explain what is this whole polarization concept is, ठीक है। देखो पहले मैं पोलर और नॉन पोलर समझाता हूं, वहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ दोज जिसके सेंटर और पॉजिटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है। डू नॉट कोइंसाइड, क्या चीज क्या कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव। तो नॉन पोलर में क्या होगा, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव कोइंसाइड करते हैं। पोलर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करते हैं। अब पोलराइजेशन का जो वर्ड है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वो आया कहां से, एक मीडियम है सिंपल सा, जब हम इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इस मीडियम में सपोजेटली इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो गए, नेगेटिव इस साइड आ गए, पॉजिटिव इस साइड आ गए, तो इसके अंदर खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है स्मॉल, छोटी सी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दिस रीजन इज लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग बाहर, क्योंकि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है E माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर जनरेट हुई है। तो इसीलिए विद इन द मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दिस इज नॉट दैट, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन कह देते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन मीडियम इज E माइनस EP, दैट वे। सो ओवरऑल पोलराइजेशन से आपको क्या मतलब समझ में आया, पोलराइजेशन मींस पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट कर दो, जिसके वजह से अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे, दैट इज इट। अब जब मैंने पोलर आपको समझाया था, सबसे पहला वर्ड ऑलरेडी पोलराइज्ड है, राइट। ऑलरेडी पोलराइज्ड मींस कि उसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव ऑलरेडी सेपरेटेड है। नॉन पोलर में दे आर कोइंसाइडिंग, और अगर हमें उसको पोलराइज करना है तो उसको सेपरेट करना है, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, उसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगे, उसके अंदर खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इससे मैंने आपको जो ऑप्शंस दिए हैं HCl and NH3, they both are what, polar and
H2O and CO2, they are non-polar. Next is draw the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस डायग्राम। दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन आता है, ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां पे तो स्ट्रेट लाइन थी, अब मैंने ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दी इस तरीके से, यहां इनके बीच में डिस्टेंस कम है, उसके बाद इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होते जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी भी पता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां पे फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं, जहां पे फील्ड स्ट्रेंथ वीक है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वीक होती है। तो अब इस डायग्राम से आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। दैट इज, देखो अब जब मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करी थी, मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में स्टार्टिंग में डिस्टेंस बहुत कम रखा और बाद में मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया। ज्यादा डिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के मैग्नीट्यूड कम है, इसीलिए ज्यादा डिस्टेंस पे है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास बनी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूर बनी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। इजी सा कंसेप्ट है। सो बेसिक मेथड इक्विपोटेंशियल सरफेस डायग्राम बनाने का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल बनेंगी। So with these two concepts, we are done with this first part. I'll see you again in the next part. Thank you.